हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशंस। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। लेट्स सी फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। फर्स्ट फंक्शन इज water is main constituents of plant cell. Here this is a plant cell. It means this is cell wall of a plant cell and this is the plasma membrane. Plasma membrane. And this watery fluid is known as protoplasm. Protoplasm. And this is mainly formed of water. So water is the main constituents of plant cell, whole plant cell. Next is it maintains turgidity of cells. What is the meaning of turgidity? Turgidity is the property of cell. This watery fluid exerts some pressure on this cell wall, and by applying this pressure it maintains shape of the plant cell. Shape of the plant cell. So due to this property the shape of this plant cell is maintained. Help in transportation of food, iron, minerals. Water जो है हमारे प्लांट की हेल्प करता है फूड को ट्रांसलोकेट करने में, आयंस में, मिनरल्स में या फिर कोई और सॉल्यूट्स में. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्ट एज रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. वी नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट. सो इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूटिलाइज्ड एज ए रॉ मटेरियल. It also help in respiration, in breakdown of fat generally. Next is help plant in regulation of temperature. How plant will regulate its temperature? We have heard process of transpiration. Transpiration. What happen in transpiration? Root absorb water and leaf will evaporate it by process of transpiration through stomata. So due to this evaporation process or transpiration process, our plant get cool down. So water help in regulation of temperature. Now as we have seen, water is very important for plant. So we will see its structure and some properties, why it is so important. Now let's see structure of water. As we know, the molecular formula of water is H2O, means 2 hydrogen atoms are bonded with 1 oxygen atom, and type of bonds are covalent bond. Now oxygen is more electronegative than hydrogen. More electronegative than hydrogen. It means ऑक्सीजन जो ये शेयर्ड बॉन्ड है हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. ड्यू टू दीज चार्जेस आवर वाटर इज बाइपोलर substance, or we can say dipolar substance. The angle between oxygen and hydrogen is 105 degree. 105 degree. जो ओवरऑल है वाटर वो न्यूट्रल रहता है. वाटर के ऊपर अपना कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं दो नेगेटिव चार्जेस से बैलेंस कर दिए जाते हैं. जो सो वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस. So this is the structure of water. Now some properties of water, and first property is it is a
universal solvent. Universal solvent. Why we call it universal solvent? Because it can dissolve maximum number of solutes in it. तो ये क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी ये कैपेबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के डिक्रीज होने की वजह से जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो रीजन फॉर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ सम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling point. High boiling point. इसका मतलब क्या है? वाटर के पास एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसी की वजह से वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, या कह सकते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई स्पेसिफिक हीट. हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब यहाँ है कि हमें इतने अमाउंट की हीट चाहिए टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रॉपर्टी है हमारी हाई स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. What is latent heat of vaporization? It is the energy needed to transform liquid phase to gaseous phase. Gas phase means हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वाटर को उसके लिक्विड से गैस फेज में ले जाने के लिए, और ये प्रोसेस हम जानते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर के लिक्विड स्टेट को गैसियस वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी हाई हीट की जरूरत पड़ती है. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोहेसन एंड एडहेसन प्रॉपर्टी. What is the meaning of cohesion? It means interaction between water molecule, H2O molecules. And what is adhesion? It is the interaction between water molecule and cell wall of xylem tissue. ट्रांसपीरेशन के दौरान, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वेसल है, और इसमें जो वाटर है अब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाया जाता है. तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा पानी का, जो वाटर है, एक अब्जॉर्प्शन होगा. तो ऑब्जॉर्प्शन किस वजह से होगा? ड्यू टू दिस कोहेसन एंड एडहेसन. जो ये एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये है हमारा कोहेसन. और जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये है हमारा एडहेसन. सो इस प्रोसेस के लिए हमें दोनों की ही जरूरत पड़ती है, कोहेसन की भी और एडहेसन की भी. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलरिटी. This is all about properties of water.